السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وصحابہ وأہل بیتہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا صدق اللہ البشیر القدیر وصدق رسولہ الرشید النذیر والحمد للہ رب العالمین آمین 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 الی غیر النہایہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پنروار میں باغ بلند درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مالک العزت والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسب امام نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو تین اشعار مجھ سے بھی سماعت فرمائیں۔ طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، طیبہ یاد کر لینا، طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، طیبہ یاد کر لینا، طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا، طیبہ یاد کر لینا، اور خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹیں۔ بھائی میری آواز شعراء کرام کی طرف نہیں ہے، لیکن محبت میں دو تین اشعار مجھ سے بھی سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ مدینے والے مصطفیٰ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، ان کا کرم ضرور جاری اور ساری ہوگا۔ خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹیں، خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹیں، کوئی غنچہ چٹک جائے تو طیبہ یاد کر لینا، طیبہ یاد کر لینا، طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، طیبہ
आखिरी शेर समाप्त करना। ज़मीं प्यासी हो झुलसे जा रहे हों खेत के पौधे, ज़मीं प्यासी हो झुलसे जा रहे हों खेत के पौधे, ज़मीं प्यासी हो झुलसे जा रहे हों खेत के पौधे, अगर पानी बरस जाए तो तैबा याद कर लेना, तैबा याद कर लेना, अगर पानी बरस जाए तो तैबा याद कर लेना, तैबा याद कर लेना। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको मुसलमान बनाया, मुसलमान बनाकर सुन्नी बनाया, फिर जब सुन्नियत में मिलावट हुई तो एक बेहतरीन इम्तियाज देकर बरेलवी बनाया। और हर बरेलवी का ये अकीदा है कि बराबर की सरजमीन से नबी का कोई भी एक दीवाना आका की बारगाह में फरियाद करे तो मेरा ईमान कहता है कि आशिक की जबान से इल्तिजा अर्ज बाद में निकलेगी, नबी पहले कबूल फरमा लेंगे। ये हम बरेलवियों का अकीदा है। अल्लाह खुद फरमाता है माता कुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो दे उसे ले लो और जिस चीज से मना करें उससे बाज आ जाओ। और एक मुकाम पे फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, यानी नबी करीम ही की वो चौखट है जहां से मुसीबत ज़दों को उनकी परेशानी से छुटकारा मिलेगा और उनकी झोली भर दी जाएगी। तो अब मैं बताने लगा हूं कि मेरे सरकार की चौखट क्या है, क्योंकि हमारा अकीदा ये नहीं है कि सरकार कुछ दे नहीं सकते, सरकार को कुछ इख्तियार नहीं है, सरकार से मांगना शिर्क है, ये हमारा अकीदा नहीं है। हमारा अकीदा तो यही है वाह क्या जूदो करम है शह बंधा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आओ प्यारे देखो मेरे हुजूर की चौखट वो चौखट है, मेरे रसूल का आस्ताना वो आस्ताना है, मेरे रसूल का दरबार यही वो दरबार आलिया है कि जहां हर साइल की झोली भर जाती है और हर मांगने वाले को मांगने से सिवा मिलता है। हाँ, यही वो शहनशाही दरबार है कि जहां जो भी भिखारी बनकर आया तो तीनों दुनिया का ताजदार बन गया। जर्रा था तो आफताब बन गया, अदना था तो आला बन गया, पत्थर था तो लाल बन गया, कांटा था तो फूल बन गया, बुरा था तो अच्छा बन गया, शकी था तो सईद बन गया, नापाक था तो पाक बन गया, रहजन था तो रहबर बन गया, जहन्नमी था तो जन्नती बन गया, कतरा था तो दरिया बन गया, सदफ था तो गौहर बन गया, काला था तो रश्के कमर बन गया, गुलाम था तो आका बन गया, मुक्तदी था तो इमाम बन गया, आराबी था तो सहाबी बन गया। हाँ हाँ, यही वो आस्ताने आलिया है कि जहाँ अबू बकर आए तो
صدیق اکبر بن گئے، عمر آئے تو فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے تو ذوالنورین بن گئے، علی آئے تو شیر خدا بن گئے، بلال آئے تو دنیا کے امام بن گئے۔ بریلی کے رضا نے اسی کی طرف اشارہ کیا، خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مخر، جو وہاں سے ہو جہیا کے ہو، جو جہاں نہیں تو وہاں۔ یہ ہمارے نبی کی چوکھٹ ہے۔ بس منظر کو دیکھو، سرکار سے سوال کرنے پہ شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، نبی کی میلاد سے چڑھا جاتا ہے، نبی کی عظمت پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے، اشرف علی تھانوی سے کسی نے کہا، ان کا جو سب سے بڑا مولانا، اس سے کسی نے پوچھا، حضرت صاحب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ایک حدیث بیان کرو۔ تو وہ کہتا ہے شان بیان کرنے کے لیے روایت کا یاد ہونا ضروری ہے، اور مجھ کو نبی کی عظمت پر ایک بھی حدیث یاد نہیں ہے۔ معاذ اللہ، ان کا جو سب سے بڑا مولانا اشرف علی تھانوی، جو سب سے بڑا مولانا مانا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نبی کی شان میں مجھ کو ایک بھی حدیث یاد نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں پیارے آ، اس منبر کے پاس آ، میلاد مصطفیٰ میں آ، میں ان بڑوں کی بات نہیں کرتا ہوں، ان بڑوں کو چھوڑ، آ اس برہ پور کی سرزمین سے ایک 10 سال کے بچے کو اٹھا اور اس سے پوچھ تیرے نبی کی شان کیا ہے۔ تو خدا کی قسم یہ 10 سال کا بچہ اپنے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے یوں کہے گا، ارے میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، ہے راہ میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے۔ ہاں ہاں، اگر تجھے نبی کی عظمت جاننی ہے تو اٹھا ایک میلادی بچے کو، پوچھ اس سے تیرے نبی کی شان کیا ہے۔ یہ بچہ اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہراتے ہوئے کہے گا، میرے نبی کی شان تو یہ ہے، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و متا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے گی وہاں تمہارے لیے، کلیم و مچی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، صبح وہ چلے کہ باغ بھلے، وہ پھول کھلے کہ دنوں بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے۔ ہمارے بڑوں کی بات بعد میں کرنا، آؤ برے پور کی دھرتی پر سے، اس سرزمین برے پور سے ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھا کے پوچھ لو کہ نبی کی عظمت کیا ہے، مچل اٹھے گا، مچل کر کہے گا سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اور دیکھو نبی کی عظمت میں بیان کرنے لگا ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ کے بہت پیارے اور محبوب پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، تو نے مجھ کو ایسی نعمت سے سرفراز کیا ہے، تو نے مجھ کو ایسی نعمت سے نوازا ہے کہ یہ نعمت کسی اور کو عطا نہ کی۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا،
फरमाया फहुज़ मा आतैनाका वकुन मिनश शाकिरीन वमुत अला तौहीद व हुब्बि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ मूसा जो कुछ दिया गया उसको ले लो और शुक्र करो और अपनी जिंदगी की आखिरी लम्हात तक तौहीद और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया मेरे परवरदिगार तू मेरा माबूद है, तू मेरा खुदा है, मैं तेरी बंदगी करता हूँ, तेरी इबादत करता हूँ, तेरी परस्तिश करता हूँ, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन मौला ये मोहम्मद कौन है जिनके साथ तू वादा ले रहा है कि जहाँ जहाँ मैं तेरी रबूबियत का इकरार करूँ वहाँ वहाँ मैं मोहम्मद से मोहब्बत भी करूँ। मौला बता तो सही ये मोहम्मद कौन है जिनके साथ तू वादा ले रहा है कि मैं इनसे मोहब्बत करूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया था कलीम जानना चाहते हो मेरे प्यारे महबूब की शान क्या है, मेरा महबूब कौन है, तो लो सुनो। अल्लाह इरशाद फरमाता है हदीस कुदसी है लौला मुहम्मदुन व उम्मतुहु लमा खलक़तुल जन्नता वल नारा वल शम्स वल कमरा वल लैला वल नहारा वला मलकन मुकर्रमन वला नबिय्यन मुरसलन वला इय्याक। ए मूसा अगर मेरा प्यारा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होता तो मैं ज़मीन और आसमान शजरे हजर बहरे पर नबातात व जमातात इंसान और हैवानात फरिश्ते और अंबिया किसी को ना पैदा करता। मालूम ये हुआ कि अगर नबी ना होते तो शजरे हजर ना होते, नबी ना होते तो बहरे पर ना होते, नबी ना होते तो नबातात व जमातात ना होते, नबी ना होते तो इंसान और हैवानात ना होते, नबी ना होते तो फरिश्ते और अंबिया ना होते, नबी ना होते तो खुशखबरी ना होती, अरे नबी ना होते तो कायनात का वजूद ही ना होता। कुर्बान जो बरेली के रजा पर उन्होंने इसी तरफ इशारा किया वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो कुछ ना हो, अरे जान है वो जान की जान है तो जान। किसी को नारा याद हो अल्लाह सलामत रखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैज़ाने शोएबुल औलिया जिंदाबाद, फैज़ाने तनवीरुल औलिया जिंदाबाद, फैज़ाने मतीनुल औलिया जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मेरे हुजूर को माँ के शिकम में आए हुए अभी सिर्फ 2 महीने गुजरे। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं ऐ मेरी शरीक हयात मैं तिजारत के सिलसिले में मुल्क शाम जाना चाहता हूँ। सैयद आमिना ने अर्ज किया मेरे सरताज अभी हमारी शादी को कितने ही दिन गुजरे हैं, अभी तो हमने जिंदगी की बहारें भी नहीं देखी हैं और आप हमें छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला ने कहा आमिना उदास न हो, मैं वापस आऊंगा, मुझे तेरे हाथ की बनी हुई रोटी भी खानी है, मुझे तेरे साथ प्यार के चंद लम्हे भी गुजारने हैं, आमिना उदास ना हो। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला गए हैं, आप मुल्क शाम चले जाते हैं, फिर वो दिन वापस आने वाला हुआ। वो दिन आया जिस दिन हजरत अब्दुल्ला लौटने वाले थे। हजरत आमिना दस्तरखान लगा देती हैं, दस्तरखान लगाकर बैठ गई हैं मगर खाने को हाथ नहीं लगाती हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी आमिना खाना खा लो। सैयदा आमिना ने कहा था बाबा जान मैं खाने को हाथ नहीं लगाऊंगी जब तक कि मेरे अब्दुल्ला वापस नहीं आ जाते हैं। उन्होंने वादा किया था कि तेरे साथ बैठकर रोटी मुझे खानी है, तेरे साथ बैठकर मुझको प्यार के चंद लम्हे गुजारने हैं, जब तक अब्दुल्ला नहीं आते मैं खाने को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं अर्ज करना चाहता हूँ प्यारे क्या आज हमारे माशरे में ये हालात पाए जा रहे हैं या नहीं? क्या हमारी औरतें भी इस ताल्लुक से सोचा करती हैं कि अगर शौहर मौजूद ना हो तो शौहर की मौजूदगी के बगैर उसकी इजाजत के बगैर कोई काम सर अंजाम दे दे? नहीं प्यारे ऐसा मत किया करो। याद रखो मेरे आका ने फरमाया था कि अगर खातून जिंदगी भर सजदे किया करे और वो इस हालत में मर जाए कि उसका शौहर उससे नाराज हो तो खुदा उससे राजी नहीं होगा, खुदा उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं देने देगा, अता नहीं करेगा। प्यारे अर्ज करने का मतलब ये है कि हालात को सुधारने की जरूरत है। और हालात हमारे कब सुधरेंगे? हालात उस वक्त सुधरेंगे जबकि हम मर्दों की जिंदगी में, हम मर्दों के किरदार में मुस्तफा के किरदार की झलक हो और हमारी खातून के किरदार में फातिमा ज़हरा के किरदार की झलक हो, तब तो मुआशरा सुधरेगा। और देखो हजरत अब्दुल्ला का इंतजार कर रही है सैयदा आमिना।
आमिना अर्ज करती है बाबा जान मैं उस वक्त तक खाने को हाथ नहीं लगाऊंगी जब तक कि मेरे अब्दुल्ला नहीं आ जाते हैं। वक्त चलता गुजरता चला गया, जब ज्यादा ताखीर हो गई है सैयदा आमिना ने कहा था बाबा जान जरा जाकर पता तो कीजिए कि मेरे अब्दुल्ला कहाँ रह गए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब निकलते हैं, हरम शरीफ में आए हैं, लोगों से पूछ रहे हैं किसी ने मेरे अब्दुल्ला को देखा है क्या? कोई जवाब नहीं दे रहा है। इतने में एक नौजवान चीखता कांपता हुआ आया है, उसने कहा ये अब्दुल मुत्तलिब गज़ब हो गया। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं क्या बात है? नौजवान ने कहा कहते हुए होंठ थरथरा रहे हैं, ज़बान कांप रही है, कैसे कहूं? अब्दुल मुत्तलिब कहे घबराओ नहीं, बताओ क्या बात है। नौजवान ने कहा था ए अब्दुल मुत्तलिब आप जिसका इंतजार कर रहे हैं अब वो आने वाले नहीं है, आपके लख्त जिगर अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। अल्लाह अकबर। उन खातून से पूछो जिसके शौहर का इंतकाल हो चुका हो, उस बाप से पूछो जिसकी बुढ़ापे की लाठी चली गई हो, जिसके बुढ़ापे का सहारा चला गया हो, चश्मो चराग बुझ गया हो। प्यारे आओ देखो, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मुझे अल्लाह ने 10 बेटे दिए थे, लेकिन मैं मेरा एक बेटा चला गया, मैं 9 से अपने दिल को बहला लिया करूंगा, लेकिन आमिना के लिए तो एक ही सहारा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे भी उठा लिया। ये बात रह रहकर मुझे सता रही थी, हिम्मत जवाब दे गई थी मैं किस तरह से आमिना के पास जाऊं, कैसे जवाब दूंगा, कैसे बताऊंगा। आप बताते हैं फरमाते हैं कि मैं कदम उठा रहा था, यूं लग रहा था पैरों पर कोई बोझ पड़ गया हो, ऐसा मालूम हो रहा था पैरों पर जमीन खिसक गई है, मगर हिम्मत इकट्ठा करते हैं, आप करीब जाते हैं, पैरों की आहट को सुनकर सैयदा आमिना दरवाजा खोलती हैं, अंदर दाखिल हुए अब्दुल मुत्तलिब। सैयदा आमिना ने बड़े अच्छे अंदाज से पूछा था बाबा जान मेरा अब्दुल्ला कहाँ है, मेरे अब्दुल्ला कहाँ है? उनको साथ नहीं लेकर आए। अल्लाह अकबर। इतना सुना है हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आंखें भर आई हैं, आंसू निकल पड़े हैं आंखों से। अल्लाह अल्लाह अर्ज करते हैं आमिना जिस अब्दुल्ला का तो इंतजार करने वाली है, जिस अब्दुल्ला का तो इंतजार कर रही है वो आने वाला नहीं है। सैयदा आमिना पूछती हैं बाबा जान आप कहना क्या चाहते हैं? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था बेटी जिस अब्दुल्ला का तो इंतजार कर रही है उसका इंतकाल हो चुका है। इतना सुना है सैयदा आमिना ने, ऐसा लगा है जैसे दुनिया उजड़ गई है। आप जमीन पर बैठ जाती हैं, अपने शिकम पर हाथ रखा है और रुख किया है आसमान की तरफ, अर्ज करती है मेरे परवरदिगार अभी मेरे बेटे ने तो अपने बाप का चेहरा भी नहीं देखा था, इसके दुनिया में आने से पहले इसको यतीम क्यों बना दिया गया? गैब से आवाज आई ऐ आमिना उदास ना हो, हमने तेरे बेटे को इसलिए यतीम बनाया है ताकि कयामत तक के आने वाले यतीमों के लिए महबूब को सहारा बना दिया जाए। खबरदार को ये न कहे कि मेरे नबी के वालिद का इंतकाल हुआ, मेरा नबी यतीम नहीं। अल्लाह ने अपने महबूब को इसलिए यतीम बनाया है ताकि सारे जमाने के यतीमों को सहारा बना दिया जाए मेरे सरकार को। और भी इस पे पॉइंट है, निकाल है, मैं उधर नहीं जाना चाहता, इसी सिलसिले में मिलाद ही पे बयान करना चाहता हूं। वक्त गुजरता गया, सैयदा आमिना बयान फरमाती हैं हर महीने कोई ना कोई पैगंबर आते और मुझे बशारत देते। जब 5 महीने गुजर गए मेरे आका को मां के शिकम में आए हुए हजरत अब्दुल्ला ये हरम शरीफ में थे। मक्का के कुछ चौधरी इकट्ठा हुए, वो कहने लगे ए अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब हमने सुना है कि आपकी बहू जब चलती है तो खुशबू लगाकर चला करती है। अरब का ये दस्तूर था, ये रवाज था, माहौल था कि अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता था तो वो 1 साल तक खुशबू नहीं लगाती। मक्का वालों ने ताना दिया सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब को कि आपको नहीं पता मक्का में जब किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता है तो वो खुशबू नहीं लगाती है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बताओ बात क्या है? मक्का के चौधरी ने कहा कि हमने सुना है, हमारी औरतें बता रही हैं कि जब आपकी बहू चलती है आमिना तो खुशबू लगाकर चला करती है। इतना सुना है अब्दुल मुत्तलिब ने, माथे पर गुस्से से पसीना आया है, निगाह शर्मिंदगी से आंखें झुक गई हैं। आप वापस आते हैं, घर पहुंचते हैं। नबी की दादी का नाम भी फातिमा था। हजरत फातिमा से अब्दुल मुत्तलिब ने कहा है फातिमा जाओ जरा पता तो करो कि आमिना खुशबू लगाकर क्यों चला करती है। हजरत फातिमा कहती है नबी की दादी जान यही पूछने के
की गर्ज से मैं गई थी आमिना के पास। मैंने जैसे ही सोचा था कि आमिना से सवाल करूं, ये आमिना ये बताओ कि तुम खुशबू लगाकर क्यों चला करती हो जबकि तेरे शौहर अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है। तो आमिना से जैसे ही मैंने इरादा किया कि पूछूं तो उसकी पेशानी से एक ऐसा नूर निकला है और वो आकर मेरी पेशानी मेरे माथे से टकराया कि मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, इतनी जसारत नहीं है कि मैं आमिना से जाकर सवाल करूं, आप ही जाकर पूछ लीजिए। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ठीक है फिर मेरे साथ चलो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब निकले हैं, साथ में नबी की दादी हजरत फातिमा भी हैं। आप करीब पहुंचते हैं, पैरों की आहट को सुनकर सैयदा आमिना ने दरवाजा खोला है। प्यारे जरा गौर से सुनना, मैं अपने आका की शान बयान करने लगा हूं। जो नबी हमारे सीने में बसते हैं, हमारा सीना जिनका मदीना है, उस नबी की शान बयान करने लगा हूं। जरा गौर से सुनना प्यारे। अल्लाह अकबर। अंदर दाखिल हुए हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा आमिना बेटी एक सवाल करना चाहता हूं, एक बात पूछना चाहता हूं तुमसे। सैयदा आमिना ने कहा बाबा जान पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था बेटी जरा ये बताओ तुझे मेरे अब्दुल्ला से प्यार नहीं था क्या? अल्लाह अकबर। इतना सुना है चीख निकल जाती है सैयदा आमिना की। आपने कहा बाबा जान दर्द का कौन सा तार छू दिया है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरी सुबह भी रोकर गुजरा करती है, मेरी शाम भी रोकर गुजरा करती है, कोई ऐसा लम्हा नहीं है कि मैं अब्दुल्ला को अपनी याद न करती हूँ। आप आखिर ऐसा पूछ क्यों रहे हैं? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा है बेटी मैंने सुना है कि जब तुम चलती हो तो खुशबू लगाकर चला करती हो, जबकि अरब का यह दस्तूर है कि अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता है तो वो 1 साल का खुशबू नहीं लगाया करती है। सैयदा आमिना कहती है बाबा जान मैं कोई खुशबू लगाकर नहीं चला करती हूँ, मैं कोई अतर लगाकर नहीं चला करती हूँ। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा है बेटी जा बेटी अगर तो खुशबू लगाकर नहीं चलती है तो फिर बता ये खुशबू के झोंके कहां से उड़ रहे हैं, ये खुशबू के हुल्ले कहां से आ रहे हैं? सैयदा आमिना ने जवाब दिया था बाबा जान मैं कोई अतर नहीं लगाती, बल्कि बात तो ये है कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, खुदा की कसम मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ गलियां भी खुशबू से महक जाया करती, मैं कोई खुशबू लगाकर नहीं चलती। जब से आपके लख्त जिगर नूरे नजर अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जहां से भी गुजरती हूँ वो जगह मुअत्तर हो जाया गया। इतने में नबी की दादी उठी है, दीवार को खुरचती है, थोड़ी सी मिट्टी लेकर हथेली पर आई, अब्दुल मुत्तलिब की हथेली में रख दिया। अब जब अब्दुल मुत्तलिब उसको सूंघते हैं तो मुझको अंबर से ज्यादा प्यारी खुशबू आ रही है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ये क्या है? हजरत फातिमा ने जवाब दिया था नबी की दादी जान ने कि मेरे सरताज सुनिए, आमिना ने इस दीवार पर कल हाथ लगाया था, उसको खुरच कर ला के मैंने आपके हाथ में पेश किया है। आमिना ने तो हाथ कल लगाया था मगर मिट्टी आज भी खुशबू दे रही है, हाथ कल लगाया था खुशबू अभी तक बाकी है। इतनी देर में हजरत सैयदा आमिना उठी है, आप दुपट्टे को लेकर आती है, अब्दुल मुत्तलिब गोद में पेश कर देती है। अब्दुल मुत्तलिब जब उसको सूंघ रहे हैं तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जन्नती खुशबू जमीन पर आ गई है। पूछा है अब्दुल मुत्तलिब ने बेटी ये तो बताओ ऐसी खुशबू मैंने मक्का में कभी नहीं सूंघी, इसमें इतनी प्यारी खुशबू कैसे आ रही है? तो सैयदा आमिना ने जवाब दिया था बाबा जान इस दुपट्टे की बात तो बाद की है, इस दुपट्टे को मैं जिस पानी में डाल दिया करती हूँ पानी भी खुशबू से महक जाया करता है। जब आए थे अब्दुल मुत्तलिब गुस्से में थे मगर अब इत्मीनान से बैठ जाते हैं और कहते हैं बेटी और मक्का वालों ने ताना दिया था, होता है सारे जमाने का यह दस्तूर है, अगर कोई कमी महसूस होती है तो कह देते हैं। नबी की मां सय्यदतुना आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में भी कहा गया कि वो खुशबू लगाकर चलती हैं जबकि उनके शौहर का इंतकाल हुआ, मगर वो खुशबू मेरे नबी के पसीने की थी, नबी के पसीने की थी। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां वल्लाह, भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां वल्लाह, और कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू, तुम्हारे गेसू। अल्लाह
अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा आमिना अर्ज करती है, बाबा जान कभी कभी ऐसा होता है कि आप चले जाते हैं हरम शरीफ में और साथ में पानी भी लेकर चले जाया करते हैं। उस वक्त मुझे कभी पानी की जरूरत पड़ती है तो मैं जब कुएं के करीब जाती हूँ तो अजीबो गरीब मंजर देखती हूँ। अब्दुल मुत्तलिब पूछते हैं, बेटी क्या देखती हो? सैयदा आमिना ने कहा था, बाबा जान जब आप चले जाते हैं मैं जाती हूँ पानी लाने के लिए तो दस्तूर ये हुआ करता है, बाकी की औरतें जब आती हैं तो रास्ते में वो रस्सी और डोल लेकर आती हैं। डोल मतलब बाल्टी लेकर आती हैं, बाकी औरतें रस्सी और बाल्टी लेकर आती हैं, लेकिन जब मैं जाती हूँ तो सिर्फ बाल्टी यानी डोल लेकर जाती हूँ। और बाबा जान बाकी औरतों को तो रस्सी खींचना पड़ता है पानी निकालने के लिए, लेकिन मेरा हाल ये है कि मैं कुएं के करीब जाती हूँ, कुएं में झांक देती हूँ, मेरा झांकना होता है कि कुएं का पानी उछाल मारता हुआ बाहर आ जाता है। बाबा जान इस तरह का मंजर मैं देखती हूँ। अल्लाह अकबर। इतना ही नहीं बल्कि ये भी मैं देखती हूँ कि जब मैं गुजरा करती हूँ बाबा जान, अगर कहीं कोई पथरीली जमीन है, अगर पत्थर है, मेरा पैर उस पे पड़ जाता है तो पत्थर मोम से ज्यादा मुलायम हो जाया करता है। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना बयान करती चली जा रही है, बाबा जान सारी औरतें कहती हैं, आमिना तुम ठहरी रहो, जब तक तुम यहाँ रहोगी कुएं का पानी दरार पे रहेगा, जब तुम चली जाओगी तो पानी फिर नीचे चला जाएगा। अल्लाह अकबर। सबसे आखिर में मैं पानी भरती हूँ, सब औरतें पानी लेकर चली जाती हैं, सबसे आखिर में मैं पानी भरती हूँ। पानी लेकर जब चलने लगती हूँ तो अजीब और गरीब की आवाजें सुनती हूँ, अजीब तरह की आवाजें सुनती हूँ। क्या देखती हूँ? पत्थरों से आवाज आ रही है, क्या देखती हूँ? दरख्तों से आवाज आ रही है, क्या देखती हूँ? घास फूस बोल रहे हैं, क्या देख रही हूँ? शजर हजर बोल रहे हैं। पूछा है अब्दुल मुत्तलिब ने, बेटी आमिना ये बताओ जब पत्थर बोला करते हैं तो तुम्हें समझ में आया करता है? सैयदा आमिना ने जवाब दिया था, हाँ बाबा जान मुझे समझ में आया करता है। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, बेटी ये बताओ पत्थर क्या बोला करते हैं? आमिना ने कहा था, बाबा जान पत्थरों से आवाज आती है, अस्सलातो वस्सलामो अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामो अलैका या उम्मा रसूलिल्लाह। ऐ नबी की बात तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले का वक्त है। अब अगर कोई कहे कि उन पत्थरों को इमाम अहमद रजा ने सलाम पढ़ना सिखा दिया, या वो ये कहेंगे कि वो पत्थर बरेली आकर सीखे थे, नहीं, उस वक्त इमाम अहमद रजा इस रूही गेटी पर नहीं आए थे। पता चला सलाम पढ़ना बरेली के रजा का तरीका नहीं है, बल्कि सलाम पढ़ना रूहुल अमीन का तरीका है, जिब्रील अमीन का तरीका है, पत्थरों का तरीका है। सवाल ये उठता है कि फिर कल ये सलाम फरमाया किसने, सलाम सिखाया किसने? तो ये क्या बताएंगे जिनको खुद अपने हसब और नसब का पता नहीं। रब कुरान में फरमाता है, वो कफा बिल्लाह शहीदा, महबूब की नात के लिए उसका होना काफी। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। बस थोड़ी सी और बात। मेरे आका की पैदाइश को वक्त हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक खातून सैयदा आमिना के पास भेजा। वो खातून हाजिर हुई। हज़रत आमिना बयान फरमाती है, अचानक मुझे पीछे से कुछ ठंडी हवाओं के झोंके महसूस हुए। जब मैंने मुड़कर देखा तो क्या देखती हूँ, एक नूरानी चेहरे वाली खातून मेरे पीछे खड़ी है। मैंने पूछा, ये खातून मैंने तुम्हें मक्का में तो कभी नहीं देखा था, तुम कौन हो? तो उस खातून ने कहा, ए आमिना, मैं जमीन वाली नहीं हूँ बल्कि मैं आसमान वाली हूँ। मैं जन्नत की मलिका हूँ, मैं जन्नत की हूरों की सरदारा हूँ, जन्नत की हूरों
की मलिका हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे तेरी खिदमत के मामूर किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरी खिदमत के लिए मुझे भेजा है। अल्लाह अकबर। जो जन्नती हूरों की मलिका है वो मेरे आका की माँ की खिदमत कर रही है। अल्लाह अल्लाह। अब अगर कोई कहने लगे कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के माँ बाप जहन्नमी हैं, तो मैं कहता हूँ प्यारे मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर किसी यहूदिया की दीवार के मकान से टेक लगा दे तो अल्लाह को ये गवारा ना हो कि उसको जहन्नम में डाले। तो जो नबी अपनी माँ के शिकम में 9 महीना रहा हो, उस माँ को कब अल्लाह गवारा करेगा कि जहन्नम में डाले। बहरहाल ये तो जमीन का मंजर था कि जन्नत की हूर की मलिका मेरे आका की माँ की खिदमत कर रही है। अब आओ देखो आसमान पर क्या मंजर था। जब मेरे आका की पैदाइश का वक्त हुआ तो आसमान पर क्या आलम था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील, जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, जी रब्बे जलील। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मिकाईल से कहो मेरी वहदानियत का खुतबा करे, खुतबा दे। हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम के लिए मिंबर लगा दिया गया है। आपने जब खुतबा देना शुरू किया है तो खुदा की कसम इस शान से खुतबा दिया है हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम ने कि एक एक पत्ता झूम रहा है, जन्नत का एक एक दरख्त झूम रहा है, जन्नत का एक एक फरिश्ता झूम रहा है, जन्नत की एक एक हूर मस्तानावार झूम रही है। जब हजरत मिकाईल ने खुतबा खत्म किया है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील, मिकाईल, इसराफील, इजराइल, तुम चारों जाओ मेरे महबूब के दरवाजे पर चले जाओ और अपने साथ 4 लाख फरिश्तों को और ले लो। मेरे महबूब की बारगाह में जाओ, मेरे महबूब की आमद का वक्त है, महबूब की आमद का वक्त है, तुम सबके सब चले जाओ। 4 लाख जाओ और 4 लोग और जाओ, यानी चारों बड़े फरिश्ते ये चाहते, इसराफील, मिकाईल, इजराइल और जिब्रील, ये चारों जाएं और 4 लाख फरिश्ते और जाएं। अल्लाह अकबर। ये चारों आने लगे हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम ने रब की बारगाह में अर्ज किया है, ए मेरे परवरदिगार, जरा ये बता तो सही कि हमें चुपचाप जाना है या कुछ बोलते हुए जाना है। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया था, ऐ जिब्रील, आज वही लेकर नहीं जा रहा है, आज महबूब की बारगाह में पैगाम लेकर नहीं जा रहा है। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, मौला भी बता सही क्या कुछ कहते हुए जाना है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया था, ऐ जिब्रील, आज महबूब की बारगाह में तू वही लेकर नहीं जा रहा है, तुझे खराजे तहसील पेश करते हुए जाना है। फिर हजरत जिब्रील ने अर्ज किया है, मौला बता क्या कहते हुए जाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया है, ऐ जिब्रील, तुझे ये कहना है, अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। इसका हिंदुस्तान में तर्जुमा किया जा रहा है, आका की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। अब वही बोलेगा जो जिब्रील अमीन का होगा। इससे पता चला कि नारा लगाना ये बरैदी के रजा का तरीका नहीं है, बल्कि जिब्रील अमीन का तरीका है। अब तो खामोश रहेगा, अब जो चुप रहेगा ना तो वो जिब्रील अमीन का होगा ना सज्जदुल मुरसलीन का होगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। जश्न गौसुल बड़ा कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल बड़ा कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने सुहाइबुल औलिया, फैज़ाने सुहाइबुल औलिया, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह। आखिरी बात कह के मैं अपनी जगह ले लूंगा। चारों फरिश्ते आए बड़े, उनके साथ 4 लाख और आए। आते वक्त हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ठहर जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत, मजे की बात तो यह है कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम सबके पास जाएंगे, सबकी रूह निकालेंगे। जब बरेलियों के पास जाएंगे तो उन्हें मालूम होगा कि ये नबी का मिलाद पढ़ने वाला था, नबी पर सलाम पढ़ने वाला था, नबी को ये कहता था मेरी जान है, ये मेरी जहान है। तो किस अंदाज से रूह निकालेंगे कि महसूस भी ना होगा। उन्हीं में से, उन्हीं आने वाले फरिश्तों में से हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम भी थे। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ठहर जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ए इजराइल जा क्यों नहीं रहा है। हजरत इजराइल ने अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार, तूने मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त लगाई है। मौला आज मुझको कितने घरों में मातम पैदा करना है, आज मुझे कितने बूढ़े के बुढ़ापे की लाठी लेना है। परवरदिगार आज मुझे कितनी माओं की गोद उजाड़नी है। मौला आज मुझे कितने लोगों की जान निकालनी है। तूने मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त लगाई है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया,
इजराइल तुझे मालूम नहीं, आज मेरी महबूब का आज मेरे महबूब की आमद का वक्त है, और महबूब की आमद के वक्त में तू ये कह रहा है कि मुझे लोगों की जान निकालनी है, रूहों को कब्ज करना है। इजराइल सुन, आज मेरे महबूब की आमद का वक्त है। महबूब की आमद की खुशी में मैंने मरने वालों को जिंदगी की खैरात दे दी है, और जा जा आज मैंने तेरी भी छुट्टी कर दी है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। जाते जाते महबूब सुभाने कुतुब रब्बानी गौसे समदानी शाहबाज़ लामकानी की एक छोटी सी करामत। हजरत उम्मुल खैर फातिमा गौसे पाक की वालिदा कहती हैं, जब अब्दुल कादिर छोटे थे तो मेरी गोद में रहते थे, अचानक उछल कर गायब हो जाते थे। पूछा है हजरत अब्दुल कादिर गौसे पाक की माँ ने, बेटा अब्दुल कादिर जरा ये बताओ कि जब तुम छोटे थे मेरी गोद में रहा करते थे, आखिर उछल कर कहाँ चले जाया करते थे? तो मेरे पीर ने जवाब दिया था, माँ मैं जब तेरी गोद से उछलता था ना, मैं जब तेरी गोद से उछलता था तो सूरज के अंदर चला जाया करता था। माँ मैं तेरी गोद से जब हटता था तो सूरज के अंदर दाखिल हो जाया करता था। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा यानी उम्मुल खैर हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माँ पूछती है, बेटा जरा ये बताओ क्या तुम अब भी सूरज के अंदर जा सकते हो? अल्लाह अकबर। मेरे पीर ने जवाब दिया था, माँ वो तो मेरा बचपना था, अब तेरा बेटा अब्दुल कादिर जवान हो गया है। माँ अब सूरज के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो अब्दुल कादिर को अपने अंदर संभाल सके। खुदा की कसम ऐसे 70,000 सूरज भी हो तो अब्दुल कादिर सारे के सारे को अपने सीने में दफन कर सकता है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के कलाम से अपने गुफ्तगू खत्म करता हूँ। मेरी रजा, अच्छी रजा, प्यारी रजा गौसे पाक का वसीला देकर नबी की बारगाह में दुआ करते हैं, इस्तिग़ासा पेश करते हैं। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है, जो मेरा गौस है, और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है, जो मेरा गौस है, और लाडला बेटा तेरा। मुझे होश कब मुझे क्या खबर थी सुजूद की, दिल में शिफा की तलाश थी कि मैं झुक रहा था नमाज में। मेरी जिंदगी भी अजीब आए, मेरी बंदगी भी अजीब आए, क्या मिल गया मेरा ना शिफा, वही मैंने काबा बना लिया। माता फिर इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।